Okay, so let's begin with today's session now. I want you all to refer the page number 150. Just look at that. दिखाई दे रहा है? This is an interesting phenomenon based on the principle of superposition of waves. हाँ, नहीं हुआ है ना? सोनोमीटर में तो हमने वो वेरिफिकेशन किया ना, लॉज. हाँ देखो ना, एक सेकेंड. When there is superposition of sound waves having same amplitude, now what is important here? Check here please. Same amplitude, they are having the same amplitude but slightly different frequencies. Same amplitude but slightly different frequencies. These are the traveling waves which are traveling in the same direction. The intensity of sound varies periodically with the time. This phenomena is called as production of beats. The occurrences of maximum intensity is called as waxing. जहाँ पर maximum intensity of sound होगा उसे कहते हैं waxing. And those of minimum intensity, the minimum intensity का जो sound होता है उसको कहेंगे waning. Waxing and waning. Okay? One waxing and one successive waning, they together constitute one beat. मतलब एक maximization of sound और एक minimization of sound, this will form one beat. This will form one beat. Okay? The number of beats per second is called as beats frequency. So we are going to see the analytical treatment of beats here. Beats का analytical treatment यहाँ पर हम देखने वाले हैं. Basically यहाँ पर इसका एक diagram मैं आपको explain कर दूँ. These are the two waves which are arriving simultaneously. तो ये दोनों waves एक दूसरे के साथ interfere करते हैं and there is a maximization of the sound over here and then there is a minimization of the sound here. So this is waxing and this is waning and waxing and waning. So there is actually, this is just like the interference of light. Light में क्या होता था? Maximization of intensity and minimization of intensity हो रहा था ना. तो वही चीज़ यहाँ पर आपको सुनाई देती है, वहाँ पर दिखाई देती है. Those were the light waves, these are the sound waves. तो bright band is corresponding to the maximum intensity, yes or no? And dark band is corresponding to the minimization of intensity. तो यहाँ पर the waxing is corresponding to the maximization of intensity and waning is corresponding to the minimization of intensity. तो उसी तरह से यहाँ पर let us consider this now. So we will consider two waves. Now can you tell me what is the equation of a wave traveling in a medium? What will be the equation of a wave which is traveling in the medium? I'll say there are two waves. तो पहला है y1 is equal to, आप लोगों ने ये तो आपको पता होगा कि when the wave is traveling in the positive x direction. तो let me say that a, this is sine of, इसका equation हम कैसे लिखते हैं? We write it as 2 pi n1t minus x upon lambda. Now this is the equation of the wave which is traveling in the positive x direction, we say. ये है wave which is traveling in the positive x direction. Okay? और positive x direction में ही travel करने वाली दूसरी wave जो होती है वो होगी a sine of 2 pi, same amplitude है a और लेकिन slightly different frequency, it is n2t minus x upon, इसका जो wavelength होगा दूसरे का वो मैं lambda 2 ले लूँगा. Now please note the difference here. These waves are traveling in the same direction. On the contrary, तो चलिए इस इक्वेशंस के साथ आगे बढ़ते हैं. बोथ दीज वेव्स, अभी ये दोनों भी माइनस एक प्लस एक माइनस है, दैट मीन्स बोथ आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन.
वेयर एज इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव्स क्या होता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा एक नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। ऐसे वेव्स को हम जब इंटरफियर होता है तो स्टेशनरी वेव्स तैयार होते हैं वहाँ पे। इज दैट क्लियर? दिस इज अबाउट द स्टेशनरी वेव्स। लेकिन यहाँ पर दोनों भी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये प्लीज़ नोट करिए, प्लीज़ नोट दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये दोनों वेव्स जा रहे हैं and according to the principle of superposition the resultant displacement is y1 plus y2. Now that is equal to I will take a common, इसका a common या फिर a I'll send this inside actually, ये बन जाएगा sin of we say the origin is over here, यहाँ से origin है, यहाँ से वेव शुरू हो चुका है and the listener is at this position. Now the listener is at this position, this displacement or this distance we call this as x. तो ये x जो है, ये वेव जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तो उसमें से whether the wave is going to be like this, मतलब ऊपर के फेज़ में होगा या नीचे के फेज़ में होगा या ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट के फेज़ में होगा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है एट एक्स इज इक्वल टू व्हाटएवर, ये हम अपने को यहाँ से पता चलता है। बट इफ़ दिस लिसनर इज़ एट ओरिजिन इटसेल्फ, मतलब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा ईजी हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? सो इफ़ द लिसनर, आई विल से इफ़ द लिसनर इज़ एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, व्हाट आई विल से हियर, इफ़, or we say for simplicity assume the listener at origin. For simplicity let x is equal to 0, that is listener at x is equal to 0. तो in that case how these equations are going to change? तो पहला इक्वेशन बन जाएगा y1 is equal to, क्या बनेगा बताइए, a sin of 2 pi n1 t, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 बन गया है, एंड y2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 pi n2 t, ऐसा बनेगा। इज दैट क्लियर? एंड देन बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 आएगा, दैट इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 pi n1 t प्लस a साइन ऑफ 2 pi n2 t, ऐसा बनेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। एंड देयरफॉर नाउ आई विल यूज़ द फॉर्मूला फॉर साइन सी प्लस साइन डी, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्या बन जाएगा ये बताइए? इसमें से a विल कम आउट, सो इट्स 2 साइन, व्हाट इज़ दैट, क्या बनेगा बताइए? नाउ व्हेन आई वांट टू ऐड दिस, यहाँ पर देखिए एक्चुअली दिस इज c एंड दिस इज d, तो इसमें आई विल टेक 2 पाई कॉमन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दिस इज n1 प्लस n2 अपॉन 2, और इधर t भी कॉमन ले लूँगा मैं, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर cos ऑल्सो, तो cos इज इक्वल टू क्या आएगा, cos ऑफ, बताइए व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? वेल दिस विल गिव मी अगेन, आई विल टेक 2 पाई कॉमन, एंड यहाँ पर आएगा n1 माइनस n2 अपॉन 2 into t. Is this okay? Is that clear? So इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें किसी तरीके से, तो ये बन जाएगा 2a, I'll write cos first, cos of 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t into sin of 2 pi n1 plus n2 अपॉन 2 इंटू t, ऐसा आएगा। नाउ लेट मी से दैट दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इसको मैं कैपिटल A बोलता हूँ। सो दिस इक्वेशन इज ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू a साइन ऑफ, क्या बन जाएगा? अब इसे मैं बोलूँगा, आई विल कॉल दिस एज स्मॉल n, ठीक है। ये अगर स्मॉल n होगा, इफ़ दिस इज स्मॉल n, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? दिस इज साइन ऑफ
2 पाई n t। आई बात समझ में? और ये जो n है ये वाला n है। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ में आया सबको? So the amplitude is given by this. Now this equation is very much of this type, y1 is equal to a sin of 2 pi n1t। तो ये इक्वेशन उसी टाइप का है, a sin 2 pi nt, जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? लेट मी जस्ट पुट दिस इक्वेशन इन द बॉक्स। इस इक्वेशन को मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। लेट मी पुट दिस इन द बॉक्स। ये रहा। ओके, so this is the equation, y is equal to, this is the we say this is the equation of the progressive wave with frequency. We say this is a progressive wave with amplitude, जिसका amplitude फिक्स नहीं है। What is this amplitude? Amplitude is given by ये सब कुछ 2a, बराबर है क्या? ये यहाँ से cos कहाँ चला गया भाई? cos लिखा था मैंने यहाँ पे 2a, ये है 2a। सो जिसका एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय 2a cos ऑफ क्या आएगा ये 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, करेक्ट? ओके, एंड विथ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आएगा इसका फ्रीक्वेंसी? क्या आएगा इसका फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज दिस ना, n1 प्लस n2 अपॉन 2, ये उसका फ्रीक्वेंसी है। तो ये प्रोग्रेसिव वेव है, दिस इज अ प्रोग्रेसिव वेव विद एम्पलीट्यूड एज दिस एंड फ्रीक्वेंसी एज दिस। अब ये एम्पलीट्यूड जहाँ पर मैक्सिमम होता है उसको वैक्सिंग कहते हैं। हमने आपको पहले ही देखा था ना, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। सो फॉर वैक्सिंग दिस एम्पलीट्यूड a इज मैक्सिमम। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू 2a हो सकता है, क्योंकि ये जो कॉस ऑफ एनी रेशियो इफ आई टेक, तो वो 1 हो, या उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होता है ना। सो अगर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2a इंटू दिस। सो अगर a मैक्सिमम होना चाहिए तो a का मैक्सिमम वैल्यू 2a होगा, क्योंकि कॉस ऑफ एनी फंक्शन कॉस थीटा इज मैक्सिमम वैल्यू उसका 1 या -1 होता है। सो आई विल से a max मतलब a is equal to 2a, and this happens when cos of 2 pi into n1 minus n2 upon 2 into t is equal to +1 या -1, ये ऐसा होता है, बराबर है क्या? अब cos ऑफ दिस इज +1 और -1, तो cos थीटा इज इक्वल टू +1 -1 कहाँ पर होता है? आपको याद है, पता है? बता सकते हो आप लोग मुझे? cos थीटा +1 या -1 कहाँ पर होता है? या लेट मी टेल यू दैट। देखिए 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, दिस इज 0 π/2 पाई 3 π/2। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 हियर +1 एंड cos थीटा इज इक्वल टू -1 हियर। तो इसका मतलब है ये जो एंगल है वो या तो π/2 है या तो 3 π/2 है, बराबर है क्या? एक मिनट, उल्टा बता दिया है मैंने। क्या बता दिया? यहाँ पे नहीं होता, cos 0 इज 1 ना। एक मिनट, cos थीटा इज इक्वल टू +1 हियर एंड cos थीटा इज इक्वल टू -1 हियर। इसका मतलब है ये जो एंगल है दैट इज दिस एंगल। व्हाट इज दिस एंगल? 2 पाई इंटू n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू क्या आएगा? ये एंगल इज इक्वल टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर? ओके। अगर मैं कंपेयर कर लूँ, इफ आई कंपेयर इट विद दिस देन आई विल गेट t इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसके साथ कंपेयर कर लूँ तो क्या बन जाएगा बताइए मुझे? 2 गेट्स कैंसिल। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसके साथ कंपेयर करना है तो दिस इज 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू पाई गेट्स कैंसिल, 2 गेट्स कैंसिल एंड देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 अपॉन n1 माइनस n2, ये आएगा।
समझे? सिमिलरली इफ आई कंपेयर इट विथ थर्ड वन, 2 पाई के साथ कंपेयर कर लूँगा तो ये आएगा 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई. तो 2 पाई गेट्स कैंसिल एंड t इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2 अपॉन n1 माइनस n2 एंड लाइक वाइज दिस विल गो. अगला आएगा 3 अपॉन n1 माइनस n2. इज दैट क्लियर? और ये सिलसिला चलता रहेगा. इज दैट ओके? सो दिस इज द टाइम when it is waxing, again the time when it is waxing, again the time when it is waxing. तो इतने टाइम इंटरवल के बाद वैक्सिंग होने वाला है. Did you understand that? The amplitude is maximum here and here and here and here and so on and so forth. Is that okay? Similarly अगर मुझे वैनिंग के लिए बात करनी है, this was about the waxing. Okay? तो what is the period of waxing? I'll say therefore what is the period of waxing? Period of waxing is given by, बोलिए, period of waxing is this minus this या this minus this या फिर this minus this. So period of waxing I'll call this as is t, rather इसको capital D बोल देता हूँ मैं. I'll call this as capital T is equal to this minus this. It will be 1 upon n1 minus n2. और पीरियड के एग्जैक्टली अपोजिट होता है फ्रीक्वेंसी. सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वैक्सिंग? फ्रीक्वेंसी ऑफ वैक्सिंग बोलो या देयरफॉर व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स? फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसको हम बीट्स बोल सकते हैं. इट इज इक्वल टू कैपिटल N एंड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन T एंड दैट इज इक्वल टू n1 माइनस n2. इज दैट क्लियर? नाउ सेम काइंड ऑफ एनालिसिस आई कैन परफॉर्म और कैरी ऑन फॉर द वैनिंग ऑल्सो. तो you all will help me in carrying out the analysis for vanning. चलिए बताइए, रनिंग ऑन द पैरेलल लाइंस. देखिए ऊपर यहाँ पे देख के आपको मुझे बताना है. सो फॉर वैनिंग, वैनिंग जो होता है दैट इज़ द मिनिमम इंटेंसिटी. सो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 0. मिनिमम होना चाहिए एम्पलीट्यूड. मिनिमम मतलब 0 होगा मिनिमम उसका वैल्यू. मिनिमम दैट इज़ इक्वल टू 0. तो ये जो एम्पलीट्यूड है वो 0 आएगा, मतलब ये सब कुछ. What is that? 2a cos of 2 pi into n1 minus n2 upon 2 into t is equal to 0. अब ये तब 0 होगा जब ये कोसाइन 0 होगा. अब cos 0 कहाँ पर होता है? इधर होता है और इधर होता है. सही है ना? दिस इज cos थीटा इज इक्वल टू 0. दिस इज cos थीटा इज इक्वल टू 0 हियर एंड यहाँ पे cos थीटा 0 होता है. मतलब therefore I would say wherever this cos of 2 pi into n1 minus n2 upon 2 into t is equal to 0 and therefore this angle 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to क्या क्या एंगल्स हो सकते हैं वो? It can be pi by 2, it can be 3 pi by 2, it can be 5 pi by 2 and so on. अभी हम क्या करेंगे? पहले इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ. तो पहले मैं पाई बाय 2 के साथ पहले कंपेयर कर लेता हूँ. therefore 2 pi into n1 minus n2 upon 2 into t is equal to pi by 2. Next I'll compare it with 3 pi by 2. So 2 pi into n1 minus n2 upon 2 into t is equal to 3 pi by 2. Next I'll compare it with 5 pi by 2. So 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to 5 pi by 2. ठीक है, चलिए कंपेयर कर लेते हैं. तो दिस 2 गेट्स कैंसिल इसके साथ, पाई गेट्स कैंसिल इसके साथ. सो व्हाट इज t इज इक्वल टू, आई विल कॉल दिस एज t1 और समथिंग. ठीक है, t इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए? इट इज 1 अपॉन 2 टाइम्स n1 माइनस n2. ठीक है, दिस इज एक्चुअली t1 बोल सकते हैं आप लोग. व्हेन देयर इज द मिनिमम एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी. इफ आई विल कंपेयर दीज टू, ये चला गया पाई और ये चला गया 2. सो व्हाट विल बी n1 t इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? 3 अपॉन 2 टाइम्स n1 माइनस n2. ये कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? पाई गया और 2 भी गया, तो क्या बचेगा? t इज इक्वल टू 5
upon 2 times n1 minus n2. Likewise it will go. Now what is the time difference between the two successive wanings? I'll say period of waning. Period of waning is this minus this या फिर this minus this. क्या आएगा? It will be 3 upon 2 times t1 minus t2 minus 1 upon 2 times t1 minus t2. तो इसमें से ये 1 upon 2 times t1 minus t2 आएगा कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर आएगा 3 minus 1, that is 2, and 2 gets cancelled. Therefore what does this give me? The period of waxing is t is equal to 1 upon t1 minus t2. Is it same as that of this period of waxing also? Therefore they are uniformly spaced, and therefore this will give me what is the frequency of bits again? The frequency of bits. The frequency of bits, it is given by capital N, or that is equal to 1 upon t, and that is equal to n1 minus n2. So that is called as the frequency of the bits. Is that clear? So what can we say here from this? We can conclude that, हम ये conclude कर सकते हैं कि therefore the time interval, what can I conclude here? The time interval therefore the time interval between the two successive minima is same as that of the two successive maxima. This we can conclude. Is that clear to all? And this phenomenon is used in the setting up of the musical instruments. Is that clear? Musical instruments को सेटअप करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. Tuning of the instruments rather I would say. Tuning. चलिए with this I'll switch over to the MCQs section. ठीक है इसका. What is a travelling wave represented by y as a function of x comma t? Thank you for silence. A sine of kx minus omega t. Now kx minus omega t ये एक plus एक minus है, मतलब this is the wave which is travelling in the positive x direction. Okay? And ये दोनों positive है, this is the wave which is travelling in the negative x direction. तो दोनों opposite direction में जाएंगे, तो that will give rise to what is called as, इसकी वजह से क्या स्टेशनरी वेव मिल जाएगा आपको, करेक्ट ना? एंड व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस स्टेशनरी वेव? कैसे करेंगे उसको? लेट मी डायरेक्टली ऐड देम. चलो मैं ऐड ही कर लेता हूँ. तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, दैट इज a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस a साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा टी. नाउ इसमें ये है एक्चुअली लुकिंग लाइक साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी विच इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस b. तो क्या मिल जाएगा ये? दैट इज a कॉमन आएगा, 2 साइन a. Now इसमें I'll call this as a and this is b, a plus b and this is a minus b. तो ये क्या आएगा? साइन a बोले तो साइन kx इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी. सही है क्या नहीं है? अब इसमें दिस विल बी द एम्पलीट्यूड, ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड होगा, एंड दिस एम्पलीट्यूड इज आई कॉल दिस एज a. तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज a cos ऑफ ओमेगा टी, एंड दैट इज नथिंग बट दिस इज अ स्टेशनरी वेव. ये स्टेशनरी वेव होगा. ठीक है. अब इस स्टेशनरी वेव के अंदर वेयर आर द नोड्स एंड एंटी नोड्स फॉर्म्ड? नोड्स कहाँ पर होते हैं? नोड्स वहाँ पर होते हैं जहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़ीरो होता है. नोड्स वहाँ पर होते हैं जहाँ पर एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड एंटी नोड्स वहाँ पर होते हैं जहाँ पर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. करेक्ट ना?
मैक्सिमम। अब यहाँ पर अगर ये एम्पलीट्यूड है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड हियर, दैट इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब साइन ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर होगा 2a साइन ऑफ के एक्स, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 2a प्लस और माइनस 2a, दैट मीन्स साइन ऑफ के एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, और यहाँ पर होगा साइन ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 0। तो साइन ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा रे? बोलो। हाँ, साइन ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब नहीं है एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं, साइन जहाँ पर 0 होगा इधर 0 होता है, पाई में 0 होता है, बराबर है क्या? 2 पाई में 0 होता है, 3 पाई में 0 होता है, यस और नो? मतलब के एक्स इज इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एटसेट्रा, यस और नो? बट के एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स। अगर मैं कंपेयर कर लूँगा तो यहाँ पर दिस इज गोइंग टू हैपन एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? अगर मैं इसको 2 पाई, इसको अगर मैं कंपेयर करूँ पाई के साथ तो क्या बनेगा बताइए मुझे? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? हेलो, समझ में आ रहा है क्या है? अगर मैं पहले वाले के साथ कंपेयर करूँगा तो मुझे एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा, एक्स इज इक्वल टू पाई के साथ कंपेयर करूँगा तो क्या आएगा? इफ़ आई विल कंपेयर दिस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू पाई, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 3 पाई, ऐसा आएगा। सो एक्स इज इक्वल टू 0 पहला वाला आएगा। नाउ व्हाट इज दिस? दिस विल गिव मी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? पाई पाई गेट्स कैंसिल, इट इज़ इक्वल टू लैम्बडा बाई 2। यहाँ पर भी अगर मैं पाई कैंसिल कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? और 2 भी कैंसिल कर दूंगा, सो दिस विल गिव मी एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा। फिर यहाँ पर भी पाई पाई कैंसिल कर दूंगा तो एक्स इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाई 2। एक्चुअली आई कैन व्यू दिस एज एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्बडा बाई 2, समझे क्या? सो एक्स इज इक्वल टू 1 लैम्बडा बाई 2, 2 लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2। सो x इज इक्वल टू, these आर द नोड्स का पोजीशन, x इज इक्वल टू 0 लैम्बडा बाई 2, 2 लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, डॉट 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 n लैम्बडा बाई 2। इज दिस क्लियर? दीज आर द पोजीशंस ऑफ नोड्स। और इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो साइन इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा इज प्लस माइनस 1। व्हेन इज दिस हैपनिंग? दिस हैपन्स व्हेन के एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2 and etc. Is this clear? But k is equal to 2 pi upon lambda, 2 pi x upon lambda. अब अगर मैं कंपेयर कर लूँगा तो दिस विल गिव मी व्हाट? यस, ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। इफ आई कंपेयर दिस, दिस इज 2 pi x upon lambda is equal to pi by 2, 2 pi x upon lambda is equal to 3 pi by 2, 2 pi x upon lambda is equal to 5 pi by 2. Okay? और ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसको कंपेयर करूंगा तो ये पाई गेट्स कैंसिल एंड व्हाट इज एक्स इज इक्वल टू? एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4, ठीक है? यहाँ पर भी पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम एक्स इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4। यहाँ पर भी पाई कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल गिव मी एक्स इज इक्वल टू 5 लैम्बडा बाय 4, और ये सिलसिला चलता रहेगा। सो दिस इज गोइंग टू गिव मी एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4, 7 लैम्बडा बाय 4। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है। अब आंसर देखिए क्या होगा। स्टैंडिंग वेव, व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? नोड्स एट n लैम्बडा बाय 2, बी इज द आंसर। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है। स्टार, हाफ स्टार, क्या बोलते हैं, हाफ स्टार या नो स्टार? नो स्टार, आप बताओ। हाफ स्टार बोल देते हैं, मुझे तो डिफिकल्ट लग रहा है बाबा। चलिए सेम एक्सप्लेनेशन के साथ, द स्टेशनरी वेव विल यूज द सेम एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी इज ऑन द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ। अब देखिए यही स्टेशनरी वेव है ना, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, इज इट द सेम?
सेम इक्वेशन है, ओ तेरी ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। इज इट द सेम इक्वेशन? चेक करिए प्लीज। इट्स द सेम इक्वेशन। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ विच टू वेव्स? वही जो ऊपर के दो वेव्स है वही लेने पड़ेंगे ना। सो इट्स द रिजल्ट ऑफ y1 is equal to a sin of kx minus omega t. This is the wave which is traveling in the positive direction. और नेगेटिव डायरेक्शन वाला जो वेव होगा वो होगा y2 is equal to a sin of kx plus omega t. Is that clear? So what is the answer here? B. Any doubts about that? Same explanation. समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? अगला क्वेश्चन, the next question I'll go for. ऐसा क्यों हो रहा है? आओ ना, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। कैन यू सी दैट? हाँ, क्या दिया है यहाँ पे? अ pulse of wave train travels along the stretched string and reaches the fixed, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 50 है क्या? पता नहीं। reaches travels along the stretched string and reaches the fixed end of the string. fixed end जो होता है वो denser medium होता है. This is the denser medium, fixed end. It will be reflected back with, ये हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स देखा था, है ना? तो अगर वहाँ पर एक रिफ्लेक्शन जब होता है तो क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज व्हाट? इफ इट इज रिफ्लेक्टेड एज अ ट्रफ, ठीक है ना? सो देयर इज अ रिवर्सल ऑफ फेज, क्योंकि पार्टिकल वेलोसिटी जो था वो कौन से दिशा में था? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, जो अब नीचे की डायरेक्शन में जाएगा. पार्टिकल वेलोसिटी इज रिवर्स्ड. एंड व्हाट अबाउट दिस इज द wave velocity which is also reversed here, correct na? So what will be the correct answer here? Please tell me. A phase change of 180 degrees with velocity reversed. So I think A is the correct answer there. सही है ना? Yeah, that's correct. Next. Yeah. Okay, what is this? In case of a traveling wave, the reflection at the rigid body will take place with the phase change of rigid body. बोलिए 51. सेम वही था ना? या पाई रेडियन होगा ना यहाँ पे? सेम क्वेश्चन, पाई रेडियन इज द फेज चेंज wherever there is reversal of velocity, the phase changes by pi radian. Okay, अगला क्वेश्चन. I'll go for the next question now. Question number 55. क्योंकि 52, 53 और 54 हमने 11th स्टैंडर्ड में सॉल्व किए हैं, आप लोग चेक करिए, मार्क किया होगा. वी ऑलरेडी सॉल्व. हाँ, तो इसलिए मैंने वही दो सॉल्व किए. 55 ऑनवर्ड्स वी हैव टू गो नाउ. जो 90 तक मैंने सॉल्व, 91 ऑनवर्ड्स मैंने सॉल्व किया था, करेक्ट. ठीक है, सो लेट्स बिगिन नाउ. क्वेश्चन नंबर 55. इन स्टेशनरी वेव्स, अब आप लोग ये देखिए, बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इन स्टेशनरी वेव्स द नोड्स आर द पॉइंट्स वेयर, अब एक मिनिमम, नोड्स आर द पॉइंट्स वेयर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है. अच्छा, एंड मैक्सिमम प्रेशर चेंज, ये आपको याद रखना है कि एट द नोड्स देयर इज मिनिमम डिस्प्लेसमेंट एंड मैक्सिमम प्रेशर चेंज. एग्जैक्टली इसके अपोजिट होगा एंटी नोड्स का. कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन एट द एंटी नोड्स? एब्सोल्युटली करेक्ट. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
एंड मिनिमम प्रेशर चेंज। उसका प्रेशर एस्पेक्ट हमने देखा नहीं, बट आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है। सो मैक्सिमम मिनिमम प्रेशर चेंज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, 56। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? बताइए। क्वेश्चन नंबर 56। आई विल ड्रॉ वन डायग्राम हियर। The distance between any two consecutive antinodes or nodes is, yes, which of the options is correct? आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है यहाँ पे। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, I'll consider one wave here। देखिए ये एक वेव है, समझो एक वेव मैंने कंसिडर किया, स्टेशनरी वेव। तो दिस इज अ स्टेशनरी वेव। देखिए ये है नोड, ये है नोड, दिस इज नोड, दिस इज एंटी नोड एंड दिस इज एंटी नोड। अब आप बताइए मुझे विच इज़ द करेक्ट आंसर? ए करेक्ट है? चेक कर लो, बता दो ठीक से। देखिए मुझे ये बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है? एक सेकेंड ना, ठीक से पढ़ के बता दो भाई, जल्दबाजी मत करो। देखिए दिस डिस्टेंस इज लैम्बडा, करेक्ट? दिस डिस्टेंस इज लैम्बडा बाई 2 एंड दिस डिस्टेंस इज हाफ ऑफ दैट, ठीक है ना? देखिए ये डिस्टेंस है लैम्बडा, ये डिस्टेंस है यहाँ तक, कितना है ये? लैम्बडा बाई 2, करेक्ट? दिस इज लैम्बडा बाई 2 एंड दिस डिस्टेंस इज लैम्बडा बाई 4। अब आप बताइए द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स और नोड्स, नोड टू नोड डिस्टेंस जो है वो लैम्बडा बाई 2 है, एंटी नोड टू एंटी नोड भी लैम्बडा बाई 2 होगा। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द डिस्टेंस बिटवीन दो नोड एंड एडजॉइनिंग एंटी नोड इज लैम्बडा बाई 4 एंड आई थिंक दैट इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली दिस इज द करेक्ट आंसर, तो यही आंसर है। इन द ओपन एंड इज अ नोड। ओपन एंड पर क्या होता है? नोड होता है, एंटी नोड होता है? एंटी नोड, सो रॉन्ग है। क्लोज्ड एंड इज नोड, करेक्ट ना? तो ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। इन एन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L ओपन एट बोथ द एंड्स, सो इट्स एन ओपन पाइप, द फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, मोड हैज़ अ फ्रीक्वेंसी कितना होता है? देखिए ओपन पाइप अगर होता है तो V N ओपन, N नहीं, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होता है वो तो बताओ पहले। V/2L होता है इसका, ठीक है? दिस इज फॉर ओपन पाइप। और क्लोज पाइप का कितना होता है जी? N इज इक्वल टू V/4L। अच्छा, इसका अगला वाला क्या होता है पता है आपको? क्लोज पाइप में ऑड हार्मोनिक्स होते हैं सिर्फ, क्लोज पाइप में ऑड हार्मोनिक्स होते हैं सिर्फ। तो इसका अगला फ्रीक्वेंसी क्या होगा? N1 इज इक्वल टू 3N, फिर अगला क्या होगा? N2 इज इक्वल टू 5N एंड डॉट 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 NP इज इक्वल टू 2P प्लस 1 टाइम्स N, ठीक है? वेर एज ओपन पाइप के लिए दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो N1 इज इक्वल टू 2N, N2 इज इक्वल टू 3N, N3 इज इक्वल टू 4N एंड NP इज इक्वल टू P प्लस 1 टाइम्स L। आई होप यू रिमेंबर दिस। और इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? V/2L एंड C is the correct, all harmonics are present here, C is the correct answer. Is this clear to you all? ठीक है, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन वाला कुछ भी नहीं था एक्चुअली, बट स्टिल आई एक्सप्लेन्ड इट। 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। अ ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग clamped at both the ends is given by this. Well, let me equate this with y xt is equal to 2a sine of kx cos of omega t, ऐसा होता है, ठीक है? x and y are in centimeter, t is in seconds. Which of the following of the statement is correct? Correct statement we want all the points on the string. अब देखिए इसको अपने को इसमें we want to find out the correct statement out of it, ठीक है?
लेट मी कंपेयर दिस रिप्रेजेंट्स बेसिकली अ स्टेशनरी वेव, ये तो एक स्टेशनरी वेव है. ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नोड्स, दिस इज अ स्टेशनरी वेव फॉर श्योर. ठीक है, तो स्टेशनरी वेव के बारे में क्या क्या दिया है अब देखते हैं. ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नोड्स वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी. हाँ ये तो सही है. सेम फेज, ये भी सही है, लेकिन सेम एम्पलीट्यूड के साथ नहीं करता वो, ये गलत है. समझ में आ गया. दो नोड्स के बीच में जो पॉइंट्स होते हैं वो साइमल्टेनियसली ऊपर जाते हैं ना. सो दे आर इन द सेम, दे आर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड अलग होता है, इसका एम्पलीट्यूड अलग होता है. करेक्ट ना. सो देयर एम्पलीट्यूड, सो ये करेक्ट आंसर नहीं है. ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स वाइब्रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी, सही है. सेम फेज बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड, ये करेक्ट आंसर है. ठीक है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड. ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नोड्स वाइब्रेटिव विद द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यही गलत है, ये रॉन्ग है. और फिर से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये रॉन्ग है. तो फॉरगेट अबाउट दैट, बी इज द करेक्ट आंसर. इज दिस ओके. अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे. वन ऑफ द मोड्स ऑफ रेजोनेंस इन द ट्यूब containing water at one end has been shown. The tube in the present case is in which harmonic? Well, यहाँ पे अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर लूँ तो फर्स्ट इसका डायग्राम किस तरह से होता है. देखिए, ये अगर है आपका पाइप, दिस फंडामेंटल मोड उसका कैसा होता है. द फंडामेंटल मोड इज लाइक दिस ना, ये फंडामेंटल मोड होता है. एंड दिस n इज इक्वल टू v अपॉन 2l. यस और नो. ठीक है. अच्छा, इसका जो अगला मोड किस तरह से होगा जी. इसका द नेक्स्ट मोड विल बी लाइक दिस. या यहाँ पर एंटी नोड होगा, तो मुझे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. 1 2 3. तो एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा. देखिए इस तरह से वेव होगा इसका. द वेव इज गोइंग टू बी लाइक दिस. इस तरह से होगा. करेक्ट है. सो इसको हम लिखेंगे n1 इज इक्वल टू 3n. ठीक है. इसी तरह से और एक हो सकता है, वो कौन सा होगा. 5n होगा. 2.5 वेव. करेक्ट. तो 1 2 3 4 और ये 5. ठीक है ना. 5. आई विल शो इट ओवर हियर. तो ये कैसे होगा. यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे होगा. सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. और दूसरा इस तरह से होगा. और इसका क्या आएगा. n2 इज इक्वल टू 5n. तो ये 3.5. देखिए हाफ, 1.5, 2.5, तो ये 3.5 है. तो इट विल बी n3 इज इक्वल टू 7n. इज दिस ओके. सो दिस इज कॉल्ड एज थर्ड ओवरटोन. इसको क्या बोलते हैं. थर्ड ओवरटोन एंड सेवेंथ हार्मोनिक. सेवेंथ हार्मोनिक. इज दैट क्लियर. तो ये क्या होगा. द आंसर विल बी थर्ड हार्मोनिक, sorry, seventh harmonic or third overtone. They can ask it in terms of overtone also. Is that clear? ठीक है. The last question. अगला क्वेश्चन देखते हैं. pth का होगा. what will be np here in this case. what will be np is equal to 2p plus 1 times n, है ना. टू ओपन पाइप्स. देखते हैं क्या दिया अगला क्वेश्चन. टू ओपन पाइप्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज न्यू1. न्यू1 v नहीं है. ये फ्रीक्वेंसी को कभी n कहते हैं, कभी न्यू भी कहते हैं. न्यू1 एंड n2 इज इक्वल टू न्यू2 आर ज्वाइंट इन सीरीज. आर ज्वाइंट इन सीरीज. द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यू पाइप. सीरीज मतलब क्या है. पाइप को ज्वाइन किया रे बाबा. बहुत सिंपल. पहला जो पाइप था उसका लेंथ कितना होगा. तो लेट मी से n1 इज इक्वल टू क्या आएगा. इट इज v अपॉन 4 टाइम्स l1. और दूसरे का क्या होगा. v अपॉन
ओपन है, 2 टाइम्स होना चाहिए, 2 टाइम्स L1 and this is V upon 2 times L2. Therefore, what is L1 is equal to? L1 is equal to V upon 2 times nu 1, and what is L2 is equal to? V upon 2 times nu 2. अब नया लेंथ L जो है it is L1 plus L2. Let me say the new frequency is V upon 2 times nu. नया frequency new है, तो what will be nu is equal to? The new frequency nu is equal to V upon 2 times L1 plus L2. Can I substitute L1 and L2 here? So this will become V upon, क्या आएगा बताइए, 2 times L1 is V upon 2 nu 1 plus V upon 2 nu 2. आगे क्या होगा बताइए इसका, इसमें से V अपॉन क्या आएगा देखिए 2, V अपॉन 2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 अपॉन न्यू 1 प्लस 1 अपॉन न्यू 2. इसमें से V और 2 सब कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट विल बी द आंसर देयर, न्यू 1 न्यू 2 अपॉन न्यू 1 प्लस न्यू 2. सो दैट इज द आंसर. व्हाट इज द आंसर हियर? ऑप्शन बी, प्लस है इधर, प्लस. So B is the correct answer. Is this clear to you all? Any doubts about that? Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. I think we'll stop here today.